سے پہلے ہم کل کی بارش کے حوالے سے بات کریں گے جو کہ کراچی میں برسی ہے، اور یہ اگر دیکھا جائے تو مانسون کی سپیل کی کوئی تیسری بارش ہے، اور اس تیسری بارش کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ کراچی میں ہر جگہ ایک طرح سے تباہی کے مناظر ہی ہیں۔ مانسون کے اس نئے سپیل نے پورے شہر کا بالکل نقشہ پلٹ دیا ہے، اور کرنٹ لگنے اور کے واقعات میں بھی ہم نے دیکھا ہوئے ایسے، اور کرنٹ لگنے اور نالے میں ڈوبنے سمیت مختلف واقعات میں 10 سالہ بچے سمیت 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ اولڈ سٹی ایریا، پی سی ایچ ایس، نرسری، ناگن چورنگی، لیاری، گلستان جوہر کے بعض علاقوں میں تو یہ عالم تھا کہ سڑکوں پر گاڑیاں تیرتی دکھائی دی۔ شارع فیصل، لیاقت آباد، سرجانی ٹاؤن، صدر، نارتھ ناز آباد، جہانگیر آباد اور کامران چورنگی سمیت کئی علاقوں میں کچرے سے بھرے ندی نالے ابل پڑے اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ علاقے جوہڑ بن گئے۔ کورنگی کی کئی سڑکیں بھی کئی فٹ پانی میں ڈوب گئیں اور بارش سے بھرا گجر نالہ اوور فلو ہو گیا، جس کے بعد ایف سی ایریا کے اطراف کے آبادی کے کئی مکانات زیر آب آ گئے۔ بابا قوم کی جائے پیدائش وزیر مینشن وہ بھی پانی میں ڈوب گیا جناب، اور اس کو بھی وہاں پہ بھی کل بعد میں پمپنگ کا کام ہوتا رہا۔ لیکن دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ ایک طرف یہ معاملہ ہو رہا تھا، رینجرز کے جوان جو تھے وہ سڑکوں پہ موجود تھے، لوگوں کو خود دھکے دے کے جو ہے نا وہ گاڑیوں کو نکال رہے تھے اور مسلسل یہ کام۔ لیکن دوسری جانب ہم دیکھ رہے تھے سعید غنی صاحب جو ہے ویڈیوز اپلوڈ کر رہے تھے کہ سارا کراچی نہیں ڈوبا ہوا، یہ علاقے ابھی تک محفوظ ہیں، اور وہ خشک علاقے جہاں پانی نہیں پہنچا تھا وہ ان علاقوں کی ویڈیوز اپلوڈ کر رہے تھے۔ تو لوگوں کو ایک طرح سے پتہ تو چل رہا تھا کہ کون سے علاقے نہیں ڈوبے، لیکن جن لوگوں کے علاقے ڈوبے ہوئے تھے ان کے زخموں پہ نمک بھی چھڑکا جا رہا ہے۔ بالکل شفاعت، اور اگر کل دیکھا جائے تو کل وزیر تعلیم سنگھ سعید غنی نے شارع قائدین، شارع فیصل، اسٹیڈیم روڈ، شہید ملت روڈ، انڈر پاس ڈالمیا اور گزری انڈر پاس، کے پی ٹی انڈر پاس اور منگوپی روڈ کے تک کی جو ویڈیوز ہیں وہ شیئر کی، اور کہا کہ یہاں پانی نہیں تھا، جیسے سڑک پر بارش کا پانی نظر آیا ویڈیو بھی ساتھ ہی بند۔ اچھا، ساتھ میں شفاعت ڈفرینٹ ایریاز میں جو بارش ہوئی ہے وہ ڈفرینٹ طریقے سے ہوئی ہے۔ کہیں بارش ہوئی ہے بالکل بوندا باندی ہوئی ہے، لیکن کہیں ناز آباد والے علاقے، ان علاقوں میں بارش بہت تیز برسی ہے، بہت زور کی بارش ہوئی ہے، اور باقی علاقوں میں مطلب ایگزیکٹلی مدیہ، خاص طور پہ جو سخی حسن کا علاقہ ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوا ہے کیونکہ وہ کمپلیٹلی سبمرجڈ ہو گیا تھا، یہ جیسے ہم اپنی تصویر میں دکھا بھی رہے ہیں۔ اچھا، اس ساری صورتحال کے دوران وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ صاحب کا کہنا تھا کہ 90% علاقہ کلیئر ہے، وہاں پانی نہیں کھڑا ہوا کراچی کا، اور صرف 10% علاقہ ڈوبا ہوا ہے۔ کیا کہا انہوں نے، آپ کو سنوا دیں۔ ان کو تکالیف ہیں، آپ سب کے توسط سے میں ان سے معذرت خواہ ہوں، لیکن آپ دیکھ لیں جتنی بڑی شاہراہیں ہیں موٹریبل ہیں، اور اگر کہیں پہ پانی ہے بھی تو 1-2 گھنٹے کے بعد وہ نکل رہا ہے۔ 90% سے زیادہ ایریا جو ہے وہ بالکل بہتر ہے۔ کئی تصاویر چلائی جاتی ہیں جو پہلے بارشیں ہوئی تھیں ان کی، حالیہ تصاویر میں کہیں ضرور ایشوز ہیں، میں مانتا ہوں، لیکن موسٹلی سارا ایریا بہتر ہے۔ دوسری جانب کراچی کے میئر وسیم اختر اپنی وہی پرانی شکایت کرتے ہوئے نظر آئے کہ ہمارے پاس اختیارات ہوتے تو شہر کا یہ حال نہ ہوتا۔ ان کا کیا کہنا تھا یہ بھی آپ کو سنواتے ہیں۔ میں اس شہر کا یہ حال ہوتا ہے کیونکہ مینیج پراپر کیا نہیں اس شہر کو۔ نالوں کی صفائی کی ذمہ داری سندھ گورنمنٹ نے لے لی ہے۔ سندھ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس پہ سیریسلی بیٹھے، اس مسئلے کو حل کرے۔ گھروں میں پانی اندر ہے، لوگ گٹر کے پانی میں بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز صاحب نے بھی ٹویٹ کی ہے، اور اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ ایک طرف شہر ڈوبتا رہا، دوسری طرف سندھ کے وزراء سے وزیرداری کی سالگرہ کا کیک کاٹتے رہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی تیسری بار اقتدار لانے والوں سے انتقام لے رہی ہے۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں وفاقی وزیر بحری امور جناب علی زیدی صاحب۔ علی زیدی صاحب کو شامل گفتگو کرتے ہیں، بلکہ علی زیدی صاحب سے کچھ دیر میں ہمیں جوائن کرنے والے ہیں۔ پہلے ہم ذرا اپنے نمائندے افضل خان کے پاس چلتے ہیں۔ بالکل شفاعت، تازہ ترین شہر کی صورتحال کیا ہے یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ افضل خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ افضل، یہ بتائے گا کہ ابھی آپ کراچی کے کون سے علاقے میں موجود ہیں، یہاں پہ صورتحال کیا ہے، اور باقی کراچی کل کی بارش کے بعد کیا منظر پیش کر رہا ہے؟ جی دیکھیے، مونسون کے تیسرے اسپیل کی پہلی موسلا دھار بارش کے بعد کراچی زیر آب آ گیا تھا۔ بیشتر اہم سڑکیں اور شاہراہیں تالاب کا منظر پیش کر رہی تھی، اور گزشتہ روز لوگوں کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اب آج دوسرا روز ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ کراچی میں بعض مضافاتی علاقے اور اس کے علاوہ
جو नशेबी इलाके हैं वहाँ पर अब भी बारिश का पानी मौजूद है। जैसे कि मैं इस वक्त तिब्बत सेंटर पर मौजूद हूँ। एम ए जिना रोड पर तिब्बत सेंटर का यह मुकाम है जहाँ पर सड़क पर अब भी बारिश का पानी मौजूद है। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकेंगे कि यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो जिस जगह पर पानी बहुत ज़्यादा जमा है वहाँ पर पहुँचकर मुश्किलात का शिकार हो जाता है, ट्रैफिक दबाव का शिकार हो जाता है। सड़क पर मुसलसल यहाँ पर पानी जमा है। गो के गुज़िश्ता रोज़ जिस तरह पानी की सतह बहुत बुलंद थी वैसी सूरत हाल नहीं है, पानी की सतह कम है, लेकिन अब भी कराची के बेशतर इलाकों के अंदर सड़कों या मोहल्लों में पानी जमा है, जैसे कि लाइन्स एरिया, जट लाइन, खारादर के इलाके, गोरा कब्रिस्तान के करीब, उसके अलावा मजाफाती इलाके, बल्दिया टाउन, औरंगी टाउन या मलीर के कुछ इलाकों के अंदर अब भी बरसाती पानी जमा है। कौन से इलाके हैं जहाँ पर अभी तक लोड शेडिंग हो रही है? जी देखिए, लोड शेडिंग गुज़िश्ता रोज़ जब बारिश हुई थी तो उसके बाद तकरीबन पूरे कराची के अंदर बिजली चली गई थी और लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन मरहलेवार बिजली बहाल होना शुरू हुई। लेकिन इस वक्त भी कराची के बेशतर इलाकों के अंदर बिजली गायब है, जैसे कि शाह फैसल कॉलोनी के इलाके से इतलात आ रही हैं, मलीर खोकरा पार्क के इलाके के अंदर से इतलात आ रही हैं कि वहाँ पर बिजली नहीं है, लियारी के अंदर बिजली नहीं है, उसके अलावा कोरंगी के बाज़ इलाकों के अंदर बिजली नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। बाज़ मुकामात पर इलाकाई फॉल्ट्स भी हैं, लेकिन उन्हें भी फौरी तौर पर दूर करना के इलेक्ट्रिक की जिम्मेदारी थी, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि जो इलाकाई फॉल्ट्स हैं फौरी तौर पे के इलेक्ट्रिक को इस मामले में चाहिए था। और मैं समझता हूँ कि अभी तक की जो सूरत हाल ये बता रहे हैं उससे यही लग रहा है कि जो इलाके डूबे थे वो पानी तो उनमें आया ही था, अब साथ में बिजली भी उनमें कम से कम पिछले 24 घंटे से नहीं है। तो कुछ बात जैसे कल डिस्को बेकरी के बाहर भी जो बिजली की तारें गिरने की वजह से वहाँ पे जो तारें जल गई और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, तो वहाँ पे भी इलेक्ट्रिक अमला तो नहीं पहुँचे, तो फिर वहाँ के जो लोग मौजूद थे उन्होंने फिर अपनी मदद आपके तहत वहाँ की जो आग जो लगी हुई थी वो बुझाई। और आपको सोचिए कि कितना रिस्की था ये कि खुदा न खास्ता पानी इतना जो वहाँ पर मौजूद था और करंट की वजह से लोगों को जैसे 3-4 कल भी केसेस सामने आए हैं तो कहीं उनको भी करंट ना लग जाता, तो ये काफ़ी खौफनाक सूरत हाल थी। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जी वफाकी वज़ीर बहरी उमूर अली ज़ैदी साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया अली ज़ैदी साहब, वक्त देने के लिए। अली साहब, ये बताइएगा कि ये सारी सूरत हाल कराची की आपके सामने है, सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही होती हैं, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ जाते हैं और घरों के अंदर पानी दाखिल हो जाता है। कल कुछ ऐसे इलाकों की भी फुटेजेस सामने आई जहां पे पानी का लेवल 9 फुट बुलंद हो गया था, गलियां गायब हो गई थी, गटर के पानी सीवेज और स्टॉर्म वाटर जो है वो मिक्स हो गया था। ऐसे ही सूरत हाल में आप कैसे देखते हैं इसको, क्या सोल्यूशन है कराची के पास? देखें, मैंने पिछले कोई महीना डेढ़ पहले सोशल मीडिया के ऊपर ट्वीट करके वार्न किया था और आपके टीवी चैनल से भी चला था कि ये कराची के जो स्टॉर्म ड्रेन है ना वो क्लॉग्ड हैं, और जब स्टॉर्म ड्रेन कराची के क्लॉग हैं तो जब बारिश होगी तो पानी बहेगा नहीं, जब बहेगा नहीं क्योंकि वो कचरे से भरे हुए हैं, जब नहीं बहेगा तो वो यही होगा जो आज आप देख रहे हैं। आपको अगर याद हो और आप इसकी गवाही भी दें कि पिछले साल 7 दिन बारिश हुई थी और पिछले साल कहीं भी पानी नहीं खड़ा हुआ। उसकी सिर्फ बेसिक वजह ये थी कि हमने स्टॉर्म ड्रेन FWO के साथ मिलके हमने जो कराची के स्टॉर्म ड्रेन थे उनमें से कचरा निकाल दिया था, जिसके ऊपर ही बड़ी उस वक्त भी भाग दौड़ ये पीपल्स पार्टी वाले काफी कर रहे थे, बल्कि मैंने इनके साथ अपने मिला लिया था इनको। इफ यू रिमेम्बर, नासिर शाह और मेयर साहब सबको साथ मिला के मैं काम करा था। सिर्फ मैं ये बताना चाहता था, एग्जाम्पल ही देना चाहता था कि देखिए ये कराची साफ हो सकता है, इससे बच सकता है। अफसोस की बात यह है कि इस साल उन्होंने वो काम नहीं किया। दे डिड नॉट क्लीन द स्टॉर्म ड्रेन्स, और मैं वार्न करता गया, पिछले हफ्ते भी वार्न किया, बारिश के बाद कॉन्स्टेंटली वार्न करता जा रहा हूँ कि जनाब जब तक आप स्टॉर्म ड्रेन से कचरा नहीं निकालेंगे बारिश का पानी वहाँ जमा हो जाएगा और रोडों पे आ जाएगा। और वही हुआ। मैं बड़ा अफसोस होता है, हम करने निकलते हैं तो हमें ये 18वीं तरमीम का ताना देते हैं, खुद करते कोई नहीं है। मुझे तो अब ये सीरियसली, मैं ऑन रिकॉर्ड ही कहना चाहता हूँ कि मुझे जो अब ये सीरियसली एक चीज लग रही है, वो क्या लग रही है, वो ये लग रही है कि कराची के साथ ये जानबूझ के बदला ले रहे हैं।
अच्छा, आपको लगता है कराची की सारी जानबूझ के बदला लेने। अच्छा, जैदी साहब ये बताएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ये दावा करी है कि 90% कराची के जो इलाके हैं वहाँ से पानी निकाल लिया गया है, और फिर वो सोशल मीडिया पे भी जो वीडियोस भी हैं वो भी अपलोड करें। आपको लगता है कि ये बेहतर तरीका था कि वैसे इलाकों की तस्वीरें ट्वीट की जाती, या फिर उन इलाकों में जाके जहाँ पानी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर जाके लोगों की मदद की जाती और उनके लिए लोगों के लिए कुछ किया जाता? मुझे ये बताइए कि सोशल मीडिया में जो पोस्ट हो रहा है, तो मैंने भी पोस्ट किया है सोशल मीडिया, और मैंने भी दिखाया है कि कितनी सफाई है और कितनी सफाई नहीं है और कहाँ कहाँ पानी खड़ा हुआ है, तो दुनिया को नजर आ रहा है। अब इनके झूठ बोलने से रोड के ऊपर से पानी चला तो नहीं जाएगा ना, झूठ बोलने से नहीं चला जाएगा। झूठ बोलते रहे, बोल रहे हैं झूठ, ये कॉन्स्टेंटली झूठ सालों साल से बोलते आए, इनका तो काम ही ये रहा है। तो अब ये दिस इज बहुत खतरनाक सिचुएशन है। या 3 घंटे बारिश हुई है, और अगर स्पेल बारिश के और आएंगे ये इससे भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। मैं तो कल प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करूंगा और मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि जी ये आप इसके लिए कोई स्पेशल अनाउंसमेंट करें कि कराची को किस तरह हैंडल करें, क्योंकि ये कराची अगर नहीं चलेगा, कराची के हाल यही रहेंगे, पाकिस्तान की इकोनॉमिक रिवाइवल पॉसिबल ही नहीं है माजरत कराची की रिवाइवल के बगैर। और जो पीपल्स पार्टी है ये तो बदला ले रही है कराची से, कंफर्म बदला, लगता है बदला ले रही है कि इनको कोई कराची से वोट नहीं, लियारी भी हार गई है तो बदला ले रहा है कि जी मरो कराची वालों तुम। अच्छा, ये बताइएगा कि वसीम अख्तर साहब जो हैं वो तो ये कह रहे हैं, मुसलसल पिछले 1 साल से यही कह रहे हैं कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है, इख्तियारात दो। और यहाँ तक उन्होंने कहा कि जी हमारे इदारे के पास जो जिसके लिए इतना बड़ा इलेक्शन होता है, इतनी बड़ी कैंपेनिंग होती है, वोटिंग के बाद एक मेयर इलेक्ट हो के अपने मनसब पे आता है, उस मेयर के पास गटर के ढक्कन बदलने तक का इख्तियार नहीं है। ये क्या मामला है, आप कैसे देखते हैं इसको? देखें, एक इमीडिएट सोल्यूशन है और एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। जो इमीडिएट सोल्यूशन है, जो इमीडिएट करना चाहिए कि वॉर फुटिंग पे, जैसे हमने लास्ट ईयर किया था, FWO को इन्वॉल्व किया, और FWO को इन्वॉल्व करके हमने सारे कराची के नाले साफ करवा दिए, और बड़ा जबरदस्त FWO ने काम किया था, जिसकी वजह से पानी बारिश का नहीं रुका। अब ये तो उसका शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है कि इमीडिएटली ये कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि और मैं जीरो एक्सपेक्टेशन है मेरी फ्रॉम द सिंध गवर्नमेंट। तो ये कुछ बोलो तो भी 18वीं तरमीम याद दिला देते हैं, काम इन्होंने करना नहीं है। एनीवेज कल करेंगे बात PM साहब से और देखेंगे। जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन कराची जैसे शहर का है ही कि इसको मेट्रोपोलिस डिक्लेयर किया जाए, इंडिपेंडेंट इसकी लोकल बॉडीज हों, हर चीज तो जी इनके हाथ में है। माने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, वो किसके पास है? डायरेक्टली CM साहब के पास। तो अगर इस तरह करके चलाना, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, ये चल ही नहीं सकता। डिवॉल्व करते हैं दुनिया में पावर, प्रॉपर लोकल बॉडी सिस्टम इज, यही एक सोल्यूशन है कराची का। प्रॉपर एम्पावर्ड लोकल बॉडी सिस्टम जो अपने इकट्ठे करे पैसे खुद, कलेक्ट करे खुद और खर्च करे खुद। आप वो नहीं करेंगे, कराची का कोई हाल नहीं। सही, बहुत शुक्रिया जी। अली हमारे साथ मौजूद थे और इंशाल्लाह कल ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से बात भी करेंगे कि भाई क्या किया जाए, कराची के लोगों की जो मुश्किलात हैं कम होने का नाम नहीं ले रही। और शफात, कल जब कराची में बारिश हुई है तो बारिश के बाद आपको पता है कि यहाँ तो जोक्स बनने लगे, मीम्स बनने लगी हैं बारिश के बाद, जी यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी। तो तकरीबन के इलेक्ट्रिक के 600 से ज़ायद फीडर्स भी ट्रिप कर गए, और निस से ज़्यादा, मतलब आधे से ज़्यादा जो कराची था कल वो बारिश की वजह से, मतलब वो बिजली में की कराची की बारिश के फेज होते हैं ना। जैसे ही बारिश की पहली बूंद पड़ती है तो लोग बादलों की तस्वीरें ट्वीट करते हैं, फिर उसके आधे घंटे बाद लोग कहते हैं जी इंजॉइंग इन रेन, फिर उसके बाद जो है लोग बारिश में नहाने के बाद जब पानी खड़ा होता है तो फिर पानी की तस्वीरें ट्वीट करते हैं, और अगले दिन जो है वो मतलब ये वाला सीन हो रहा होता है जो हम कर रहे हैं कि जनाब कराची को बदलो, निजाम को बदलो, नालों की सफाई वगैरह। ये फेज होते हैं, 4 स्टेजेस हैं। ये बिल्कुल जिस तरह होता है ना, लाइफ साइकिल बनाते थे तितली का, कि अंडे से बनता है, तितली बनती है और उसके बाद। तो जनाब ये जो कराची की बारिश हुई है, इसने जो पहला काम किया वो जनाब लोड शेडिंग का किया, और लोड शेडिंग के बावजूद ये ज़रूर हुआ कि जो लोग जो बेचारे बारिश में मतलब बोर हो रहे थे वो कम से कम बाहर निकल आए, उन्होंने थोड़ा बहुत बारिश में नहा के अपना थोड़ा सा एंजॉय कर लिया।